Good morning, students. I hope that all of you will be staying safe and enjoying the chilly winter weather. In today's lecture, we are going to learn more about the characters of the story Yellow Wallpaper, and we will also be going for the critical analysis of the story. Well, students, before continuing further, let's recall what we have studied in the previous lecture about the story Yellow Wallpaper. The Yellow Wallpaper has been written by Charlotte Perkins Gilman. Charlotte was an American writer and economist. She was basically a feminist. She has worked a lot for the sufferings of the women of American society. The story Yellow Wallpaper has been set in the Victorian era. The Yellow Wallpaper is a story by Charlotte Perkins Gilman published in 1892 in the New England magazine. It is regarded as an important early works of American feminist literature for its illustration of the attitudes towards mental and physical health of women in the 19th century. And this story has a very strong impact on the minds of the American women. The characters in the story are not too much. Major character in the story is of narrator, and the story revolves around a woman who has been suffering from postpartum depression after the birth of her daughter. Her husband is a doctor and he himself is treating his wife, but the way of treatment of depression at that time by the American doctors seems quite absurd. हम देखते हैं कि उस ज़माने में जो अमेरिकन डॉक्टर्स थे वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन की जो ख़वातीन थी उनकी डिज़ीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते थे, या व्हाट वी कैन से कि दे डोंट हैव अ क्लियर विजन अबाउट दिस डिज़ीज़। तो वो इसका इलाज ये प्रिस्क्राइब करते थे कि पेशेंट को जो है वो आइसोलेट कर देते थे. दे यूज टू कन्फाइन द women suffering from postpartum depression in a room, and they ask her not to do anything, not to do any household chores, and they even ask the women suffering from depression not even to write, to read, or to do something, or to discuss her thoughts with somebody else. So same is the case over here with the major character of the story, that she is being suffering from postpartum depression and her husband has asked her to stay isolated from rest of the world, and he has confined his wife in a room where she is staying alone. She don't have to do anything. Her daughter has been taken care by a nanny, and rest of the household chores are being performed by her sister-in-law, and the narrator is all the time sitting isolated in a room where there is a yellow wallpaper. तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या हमें मिलता है कि द नरेटर इज़ ऑल द टाइम बिजी इन स्टेयरिंग एट द येलो वॉलपेपर, एंड देयर वर डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द येलो वॉलपेपर. तो नरेटर कहते हैं कि वो सारा दिन येलो वॉलपेपर के पैटर्न्स देखती थी और उन्हें ये फीलिंग आती थी कि देयर इज़ अ विमेन ट्रैप बिहाइंड द येलो वॉलपेपर, और येलो वॉलपेपर के पीछे जो औरत कैद है वो बार्स को जेल की, यानी येलो वॉलपेपर को वो एक तरह से जेल की सलाखों से तशबीह देती हैं कि द विमेन इनसाइड द येलो वॉलपेपर इज़ शेकिंग द बार्स ऑफ द jail so that she can come out of it and she could live freely. तो basically जो narrator हैं, she is all the time confined in a room and she has nothing to do over there. She is sitting in a state of idleness and inactiveness. तो all the time she is staring at the yellow wallpaper. तो वे accustomed हो जाती हैं yellow wallpaper की तरफ और उनको एक जुनून हो जाता है कि येलो वॉलपेपर के पीछे जो औरत कैद है उन्होंने उसको आज़ाद करवाना है. बेसिकली दीज आर हर थॉट्स अबाउट हर सेल्फ, क्योंकि वो भी एक रूम में कन्फाइंड है एंड शी हैज़ बीन आइसोलेटेड बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो वो अपने आप को बेसिकली आज़ादी दिलवाना चाहती हैं. शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग ऑन हर ओन. तो वो सारा जो उनकी जुनूनी कैफियत है कि उन्हें लगता है कि येलो वॉलपेपर के पीछे एक औरत है, बेसिकली डिप्रेशन की स्वेयर फेस की तरफ उन्हें लेके जा रही है. जबकि उनके हस्बैंड जो हैं उनकी कोई बात नहीं सुनते. उन्हें लगता है कि उनकी मिसेज़ जब अकेले रहेंगी, तन्हा रहेंगी, एंड शी विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग एंड शी विल बी स्टेइंग आइसोलेटेड, तो शी विल बी फ्री फ्रॉम डिप्रेशन एंड शी विल बी वेल वेरी सून. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑथर हैं वो यहाँ पे जो डॉन का करेक्टर हमें बताती हैं उसमें हमें नेगेटिव करेक्टर लगता है कि, लेकिन हम ये देखते हैं कि जॉन इज़ वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हिज वाइफ. ही वॉन्टेड हिज वाइफ टू बी वेल, लेकिन उसका तरीका इलाज गलत है. बट ही इज़ नॉट अ नेगेटिव करेक्टर एट ऑल बिकॉज ही टेक्स केयर ऑफ़ हिज वाइफ वेरी वेल. और वो अपनी मिसेस की बेहतरी के लिए उन्हें उस रूम में उसने कन्फाइन किया हुआ है, क्योंकि उस ज़माने में डिप्रेशन का इलाज अमेरिकन डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग सिर्फ जो है वो रेस्ट था. इसलिए उनकी मिसेस जो हैं उन्हें तनहा कर दिया गया है कि वो सिर्फ रेस्ट करें और कुछ और ना सोचें. जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है. जब इंसान
आइडलनेस की, इनएक्टिवनेस की स्टेट में होता है और वो कुछ नहीं करती, अपने माइंड को यूज़ नहीं कर रही थी, तो शी वॉज गेटिंग अकस्टम टू स्वेयर डिप्रेशन, और वो जो है पागलपन की हद तक पहुंच गई। और एंड में हम ये देखते हैं स्टोरी के कि एंड ये होता है कि वो इस हद तक जुनूनी कैफियत में आ गई हैं, जान अंगेज़ उनके जो है वो ख्यालात हो गए कि शी हैज़ जस्ट टॉर्न अवे द येलो वॉलपेपर इन द रूम। उन्होंने येलो वॉलपेपर को टुकड़ों में तकसीम कर दिया, और उसके पीछे उनका मकसद ये था कि वो वॉलपेपर के पीछे जो औरत उनके तस्वुरात में कैद थी उसको आज़ादी दिलवाना चाहती थी। एंड एट द एंड व्हाट हैपेंड कि व्हेन जॉन हैज़ एंटर्ड इन द रूम, हिज वाइफ वाज क्रीपिंग मैडली इनसाइड द रूम, एंड as all of us have come to know that येलो वॉलपेपर की जो स्टोरी चार्लेट पर्किंस गिलमन ने लिखी थी, दैट वाज बेसिकली द स्टोरी ऑफ हर ओन लाइफ व्हेन शी हरसेल्फ वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिप्रेशन। चार्लेट पर्किंस गिलमन से जब 1913 में पूछा गया कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड राइटिंग द येलो वॉलपेपर, तो शी टोल्ड द फॉलोइंग रीज़न: For many years, I suffered from a severe and continuous nervous breakdown, tending to melancholia and beyond. During about the third year of this trouble, I went in devout faith and some faint stir of hope to a noted specialist in nervous diseases, द बेस्ट नोन इन द कंट्री। चार्लेट कहते हैं कि वो बहुत अरसा जो है कॉन्टीन्यूस फेयर नर्वस ब्रेकडाउन से गुजरी, और जब उनकी जो है एंड होने लगा, मतलब शी वॉज अनेबल टू कॉप अप विद द डिप्रेशन, सो शी डिसाइडेड टू विजिट द स्पेशलिस्ट ऑफ नर्वस डिजीज़, और जिस नर्वस स्पेशलिस्ट के पास वो गई, दैट ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट नोन इन द कंट्री। द वाइज मैन पुट मी टू बेड एंड अप्लाइड द रेस्ट क्योर। जो जीनियस डॉक्टर था उनके बकौल उसने जो है उनको जो है वो बेड पर लिटा दिया, एंड आस्क हर टू टेक कंप्लीट रेस्ट, to which a still good psychic responded so promptly that he concluded that there was nothing much the matter with me and sent me home with solemn advice to live as domestic a life as possible. वो कहती हैं कि डॉक्टर ने मुझे 2-3 दिन हॉस्पिटलाइज रखा, एंड ही डिसाइडेड कि रेस्ट इज़ बेस्ट फॉर मी, एंड ही आस्क मी टू गेट बैक टू होम, और आपके साथ कोई इतना स्वेयर मसला नहीं है, जस्ट घर जाएं और एक घरेलू ज़िंदगी गुजारें जितनी आप गुजार सकती हैं। मीन्स द डॉक्टर वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट शी वॉज सच अ क्रिएटिव वेमन, और उसने जो है उनके डिप्रेशन का यही इलाज कंक्लूड किया कि शी शुड टेक रेस्ट एंड शी शुड लिव अ लाइफ एज डोमेस्टिक एज शी कैन, यानी वो जो अमेरिका का उस वक्त कल्चर था विक्टोरियन एरा का, कि शी शुड बी कन्फाइंड टू डोमेस्टिक कोर्स, और वो अपनी घरेलू ज़िंदगी गुजारें। टू हैव बट 2 hours इंटेलिजेंट लाइफ अ डे एंड नेवर टू टच पेन ब्रश और पेंसिल एज लॉन्ग एज आई लिव्ड, दिस वॉज इन 1887। 1887 की ये बात है जब वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही थी, एंड द डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड हर नेवर टू टच पेन ब्रश और पेंसिल एज लॉन्ग एज शी लिव। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि जब तक आप जिंदा हैं आपने पेन पेंसिल या ब्रश को टच नहीं करना, क्योंकि बेसिकली होता ये है कि हम अपने ख्यालात जब लोगों के आगे उनका इजहार नहीं कर सकते, या हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कुछ चीज़ें चल रही होती हैं और हमें लगता है कि पीपल आर अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन विद अस, तो हम अपने ख्यालात को कागज़ के ज़रिए, पेंसिल के ज़रिए, कलम के ज़रिए आगे मुंतकिल करना चाहते हैं, बट द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर नॉट टू डू दिस, ताकि उनकी जो एक क्रिएटिविटी है वो उसको महदूद कर दें, एंड शी शुडंट डू एनीथिंग, और वो अपने आप को मज़ीद डिप्रेशन का शिकार बना लें। दैट वाज द क्योर ऑफ डिप्रेशन एट दैट टाइम बाय द डॉक्टर। वो बहुत अच्छे उन वक्त के ज़माने के डॉक्टर होंगे, बट हिज ट्रीटमेंट वाज क्वाइट रॉन्ग, और उसकी वजह से जो है उनके ट्रीटमेंट को जो है देखते हुए Charlotte Perkins Gilman has decided that she has to write something, and she decided to work for the sufferings of women in America at that time during Victorian era. Well, students, today we are going to learn more about the characters of the story Yellow Wallpaper, and we are going to have the critical analysis of the story as well. While going for the critical analysis of the story, you should always have few things in your mind that I'm going to tell you right now. Basically, you should always have one thing in mind while going for the critical analysis is कि how is the setting of the story. Setting basically कहते हैं description को कि where and when the story has taken place. हम जो हैं क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि there are only few settings in the short story as compared to novel. When you are going for the critical analysis of the story, you should always ask the following questions from you: that how is the setting created in the story? We have to consider the geography, weather and time of the day and social conditions being used. And what role does setting play in the story? What is the major role played by the setting in the story? Is it an important part of the plot or theme? Story में जो है setting का कोई major role है या नहीं? For example, now we are going to have the critical analysis of the story Yellow Wallpaper.
तो येलो वॉलपेपर की जो स्टोरी है इसमें मेजर जो है पार्ट जो है वो सेटिंग ही प्ले करती है, क्योंकि सारी स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड द सेटिंग ऑफ द रूम जो येलो वॉलपेपर के थ्रू की गई है. Then we have to be very concerned about the characters. Characterization deals with how the characters in the story are described. We have to be very conscious about the way the characters are being described in the story. Short stories में basically बहुत कम characters होते हैं as compared to novel, और मेजर जो फोकस होता है शॉर्ट स्टोरी के करेक्टर्स का वो एक ही करेक्टर पे होता है. सो वी हैव टू आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हाइल गोइंग फॉर द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द स्टोरी. दैट व्हाट इज़ द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी, आर द मेन करेक्टर्स और अदर करेक्टर्स डिस्क्राइब थ्रू डायलॉग और बाय द वे दे स्पीक, कि वो किस तरह एक दूसरे से बात करते हैं. व्हाट इज़ द वे ऑफ communication. Has the author described the characters by physical appearance, thoughts and feelings and interaction? Are they dynamic round characters, and what sort of characters they are? What are the major qualities in the characters of the story? And most important question that you have to ask while you're going for the critical analysis is कि are the characters believable, कि जो है characters जो हैं वो believable हैं या they are unreliable. We have to be very concerned about the plot and structure of the story while going for the critical analysis. हमें नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू शी और ही इज़ यूजिंग, और इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू रिलायबल और नॉट. What sort of conflict or tension is really used in the story, and what was the reason behind the conflict. How is the climax? Climax is major point of great tension or intensity in the short story. It can also be considered as the point where events take a major turn as the story races towards its conclusion. हम देखते हैं कि जब स्टोरी अपने क्लाइमेक्स की तरफ पहुंचती है, अपने एंड की तरफ पहुंचती है, तो उसी वक्त उसमें मेजर टर्न्स आते हैं. सो यू हैव टू आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हाइल गोइंग फॉर द क्रिटिकल एनालिसिस. दैट इज देयर अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी, स्टोरी में कोई टर्निंग पॉइंट है? इफ़ येस, देन वेयर इज़ दैट पॉइंट एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट टर्निंग पॉइंट, एंड व्हेन डज द क्लाइमेक्स टेक प्लेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्रिटिकल एनालिसिस में आ जाती है कि यू शुड बी फुली अवेयर अबाउट व्हाट इज़ द मेजर थीम ऑफ द स्टोरी. आपको जब तक थीम के बारे में नो हाउ नहीं होगी, यू आर नॉट क्लियर अबाउट द मेजर थीम्स ऑफ द स्टोरी और द राइटिंग्स, you are unable to go for the critical analysis, because theme is the main idea, lesson or message in the story. It can be an abstract idea about the human condition, society or life. So you have to ask yourself that how is the theme expressed in the story, what is the theme of the story, are there any elements represented in the story, और क्या स्टोरी में एक से ज़्यादा थीम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी आर गोइंग टू हैव द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द स्टोरी येलो वॉलपेपर. तो इस स्टोरी में एक से ज़्यादा थीम्स हमें नज़र आएंगे. सो वी हैव टू कीप ऑल द थीम्स इन आवर माइंड व्हाइल गोइंग फॉर द क्रिटिकल एनालिसिस. क्रिटिकल एनालिसिस में हमें राइटर का जो राइटिंग स्टाइल है उसको भी कंसिडर करना होता है. वी हैव टू evaluate द राइटिंग स्टाइल ऑफ द राइटर, that what sort of style and what sort of vocabulary has been used, whether it's imaginary, its tone is real or it's unreliable. It has to do with the author's attitude towards the subject. In some short stories, tone can be ironic. Ironic means तंजिया, humorous हो सकती है, cold और dramatic. ड्रामाई अंदाज में गुफ्तगू की जा सकती है. So you have to keep all these things in your mind while you are going for the critical analysis of some story. इस story का critical analysis मैं आपको खुद करके दूंगी, but in the next stories we are going to have the critical analysis by the students. You have to go for the critical analysis yourself. येलो वॉलपेपर का जो जेनर है दैट इज़ हॉरर जेनर, और इसको गोथिक लिटरेचर के साथ भी जो है रिलेट किया जाता है. गोथिक लिटरेचर के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गोथिक फिक्शन. जो टर्म है गोथिक फिक्शन की, दैट रेफर्स टू अ स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ फियर, डेथ, horror and gloom, as well as romantic elements are also being used in Gothic literature, such as nature, individuality and very high emotions. These emotions can include fear and suspense. और हम देखते हैं कि येलो वॉलपेपर में high emotions have been used by the narrator, कि वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई because she was a patient of depression कि she was unable to control her emotions. So this work can be characterized as Gothic fiction. ओके जी, नेक्स्ट इसमें जो गोथिक फिक्शन की जो है कन्वेंशंस हैं, ये फर्दर इसकी डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं.
येलो वॉलपेपर का जो जेनर है दैट इज़ हॉरर जेनर, और इसको गोथिक लिटरेचर के साथ भी जो है रिलेट किया जाता है। गोथिक लिटरेचर के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गोथिक फिक्शन। जो टर्म है गोथिक फिक्शन की, दैट रेफर्स टू अ स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ फियर, डेथ, horror and gloom, as well as romantic elements are also been used in Gothic literature, such as nature, individuality and very high emotions. These emotions can include fear and suspense, और हम देखते हैं कि येलो वॉलपेपर में high emotions have been used by the नरेटर कि वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई बिकॉज शी वॉज अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन कि शी वॉज अनेबल टू कंट्रोल हर इमोशंस। सो दिस वर्क कैन बी करेक्टराइज्ड एज गोथिक फिक्शन। ओके जी, नेक्स्ट इसमें जो गोथिक फिक्शन की जो है कन्वेंशंस हैं, ये फर्दर इसकी डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द कन्वेंशंस ऑफ द गोथिक फिक्शन। गोथिक फिक्शन की कन्वेंशंस पे एक नज़र डाल लेते हैं। जनरली कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ द हॉरर एंड रोमांस जेनरे, कॉम्बिनेशन होता है हॉरर और रोमांस जेनरे का। सिनिस्टर सेटिंग्स आर बीइंग अप्लाइड, कासल्स, डंजन्स, सीक्रेट पैसेजेस, वाइंडिंग स्टेयर्स, हॉन्टेड बिल्डिंग्स आर देयर। कैद खाने होते हैं, कले होते हैं, पोशीदा रास्ते होते हैं, आइसोलेटेड लैंडस्केप्स, रग माउंटेन्स, थिक फॉरेस्ट, घने गहरे जंगलात, रन डाउन बैक स्ट्रीट्स एंड एलेवेज। वेदर इज़ इन मेजॉरिटी केसेस बैड वेदर, स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, थंडर, मिस्ट, फॉग, धुंध, तूफान बादुबारा, बिजलियाँ चमक रही हैं, बादल गरज रहे हैं। evil omens, dark symbolism, ancestral curses and secrets, big secrets are hidden, और जो है उन सीक्रेट्स को जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही होती है, उनका राज पाने की कोशिश की जा रही होती है। Elements of supernatural are there, ghosts, hauntings, doppelgangers, twins, etc. Let's revise the conventions of the Gothic once more. Generally combines elements of the horror and romance genre. Sinister settings, castles, dungeons, secret passages, winding stairs, haunted buildings are there. Isolated landscapes are being used, rugged mountains, thick forests, run-down back streets and alleyways. Weather condition is not good. Storms are there, lightning, thunder, mist, fog, इस तरह का scenario create किया जाता है. Evil omens, dark symbolism, ancestral curses are there, and secrets, big secrets are always there. Majority of the timings, big secrets are there in the Gothic literature. Elements जो हैं supernaturals के elements are found there. Ghosts, hauntings, doppelgangers, twins, etc. Let's have a look at the characters of the Gothic fiction. Gothic fiction के जो characters हैं वो किस तरह के होते हैं? Tyrant, villains, madmen and crazy women in attics. Majority cases में जो है वो जालमाना रवैया रखने वाले मर्द और ख़वातीन, villains पागलपन की शिद्दत को तो छूने वाले मर्द और औरतें जो शिद्दत पसंद होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, पागलपन की इंतहाओं को पहुँचे हुए। Persecuted maidens, femme fatales, innocent victims, often children. मेजॉरिटी केसेस में जो विक्टम्स हैं वो मासूम बच्चे होते हैं। जुल्म जबर के शिकार ख़वातीन दिखाई जाती हैं। ऑप्रेस्ड मेडन्स आर बीइंग शोन। घोस्ट, मॉन्स्टर्स, डेमन्स, वेम्पायर्स, वर्वुल्स, जिन, भूत, बलाएँ, रूहें मेजर करेक्टर्स में आ जाती हैं गोथिक फिक्शन के। बैरोनिक हीरोज़ आर बीइंग शोन हु आर इंटेलिजेंट, सोफिस्टिकेटेड एंड एजुकेटेड। इस तरह के लोग जो बहुत ज़हीन होते हैं, सोफिस्टिकेटेड और तालीम याफ्ता होते हैं, बट दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ जंग में मसरूफ़ होते हैं, असाबी तनाव का शिकार होते हैं, डिप्रेशन के फेजेस से गुजर रहे होते हैं। लाइक वी हैव द करेक्टर ऑफ नरेटर इन द येलो वॉलपेपर, जो है उसकी डिप्रेशन की पेशेंट हैं, शी वॉज अनेबल टू मैनेज हर इमोशंस। ट्रबल्ड पास और डार्क एट्रीब्यूट, सीक्रेट फैमिली कर्सेस, इस तरह के करेक्टर्स दिखाए जाते हैं जिनका ट्रबल्ड पास होता है, माजी में मुश्किलात होती हैं, या माजी जो है वो उनका कुछ खुशगवार नहीं होता, इसलिए वो जो है प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, फैमिली कर्सेस का शिकार होते हैं। सो लेट्स रिवाइज द गॉथिक करेक्टर्स वंस अगेन. They are majority cases tyrants, villains, madmen and crazy women in attics. Persecuted maidens are being shown femme fatales, innocent victims, majority cases में children होते हैं। गोस्ट, मॉन्स्टर्स, डेमन्स, वेम्पायर्स, वर्वुल्स, हॉरर किस्म के करेक्टर्स दिखाए जाते हैं। बायरॉनिक हीरोज़ और ऑल्सो देयर, जो कि इंटेलिजेंट और सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बट दे आर अनएबल टू कॉप अप विद देयर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने आसाब की जंग जो है उससे हार जाते हैं और अपने आसाब को जो है वो कंट्रोल में नहीं रख सकते और डिप्रेशन के पेशेंट्स बन जाते हैं, स्वेयर डिप्रेशन में चले जाते हैं। Let's have a look at the major character of the story, that is of the narrator herself.
and the whole story revolves around the narrator. Narrator is basically a young upper middle class woman who has been married to a doctor, and her husband name is John. She has become mother for the first time, and she has given birth to a daughter, and after the birth of her daughter she is suffering from postpartum depression. So right now she is undergoing care for depression, and her husband is basically a physician, so he is treating his wife himself, he is taking care of his wife himself. The narrator, whose name may or may not be Jane, is highly imaginative and a natural storyteller, though her doctors believe she has a slight hysterical tendency. जो नरेटर हैं वो ख्यालात और सोचों की दुनिया में रहती हैं, एक इमेजिनेटिव खातून हैं, एंड शी इज़ बेसिकली अ नेचुरल स्टोरी टेलर, कुदरती तौर पे स्टोरी टेलर हैं बाय बर्थ. यू कैन से कि कुछ क्वालिटीज़ इंसान के अंदर ऐसी होती हैं जो बाय बर्थ उसके अंदर होती हैं, तो शी इज़ बेसिकली अ नेचुरल स्टोरी टेलर, लेकिन उनके डॉक्टर्स को ये लगता है कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम हिस्टेरिया. She finds solace in her journal, and as her stay wears in the room with yellow wallpaper, the story is told in the form of her secret diary in which she records her thoughts as her obsession with the wallpaper grows. हम देखते हैं कि जो narrator हैं, she has become addicted with the yellow wallpaper, क्योंकि उनको जब रेस्ट प्रिस्क्राइब किया गया एज अ ट्रीटमेंट फॉर हर डिप्रेशन, तो हर हस्बैंड कन्फाइंड हर इन अ रूम दैट इज़ हैविंग अ वॉल विद येलो वॉलपेपर. उन्हें जिस रूम में लॉक कर दिया गया, जिस रूम में कैद कर दिया गया, वहाँ पे एक येलो वॉलपेपर था जिस पर डिफरेंट पैटर्न्स थे. तो जो नरेटर है, शी इज़ ऑल द टाइम बिजी विद द येलो वॉलपेपर, और वो उसके जो वॉलपेपर के पैटर्न्स थे उनके पेचो खम में खोई रहती थी, और उन्हें ये लगता था कि वॉलपेपर के पीछे एक औरत कैद है जो वॉलपेपर से आज़ादी चाहती है. बेसिकली ये सारे नरेटर की अपनी सोच थी, बिकॉज शी वॉज बीइंग इम्प्रिजन्ड इन अ रूम एज अ क्योर फॉर हर डिप्रेशन. उन्हें पेपर पेंसिल देने से मना कर दिया गया था, उन्हें राइटिंग करने से मना कर दिया गया था, वो अपने ख़यालात किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी. शी वॉज बीइंग सेंट अलोन इन द रूम, और उन्हें कहा गया था कि अकेले रूम में वो रहेंगी, रेस्ट करेंगी, कोई काम नहीं करेंगी, इनएक्टिव रहेंगी तो शी विल बी फाइन. जबकि जो ट्रीटमेंट था डॉक्टर्स का, अमेरिकन डॉक्टर्स का जो वे ऑफ ट्रीटमेंट था डिप्रेशन का, दैट वाज टोटली रॉन्ग. लेकिन उनके जो हस्बैंड थे वो उनकी पर्सनालिटी को डोमिनेट करते थे. उन्हें लगता था कि नरेटिव इज़ अ लिटिल गर्ल, शी इज़ नॉट सो इंडिपेंडेंट, शी इज़ नॉट सो सेंसिबल, वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती, इसलिए वो उनके सारे डिसीजंस खुद लेते थे और इंडिपेंडेंटली मूव करने नहीं देते थे. तो उनके हस्बैंड के अकॉर्डिंग रेस्ट जो है वो बेस्ट था उनकी सेहत के लिए, सो शी कैन बी फाइन फ्रॉम डिप्रेशन. जबकि नरेटर जो हैं वो आइसोलेट रह रह के और अकेले रह रह के अपने ख्यालात का इजहार ना करने की वजह से तन्हाई का शिकार होकर येलो वॉलपेपर की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी, और उनकी सारी तवज्जो येलो वॉलपेपर की तरफ थी. तो उन्हें ये लगता था कि उनकी तरह येलो वॉलपेपर के पीछे एक औरत कैद है जिसको वो आज़ादी दिलवाना चाहती थी. एंड एट लास्ट वी कैन सी that narrator has become severely mad because of the reason that she has been isolated and confined in a room, and she was unable to control her emotions. Let's have a look at the character of John. John is a practical man, physician by profession and is narrator's husband. जॉन जो एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले इंसान हैं, बाय प्रोफेशन वो एक डॉक्टर हैं और नरेटर के हस्बैंड हैं. ही इज़ डूइंग द ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ हिमसेल्फ, अपनी मिसेस का इलाज खुद कर रहे हैं. ही लव्स हिज वाइफ बट couldn't फिगर आउट द थॉट्स ऑफ हर. वो अपनी मिसेस से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसीलिए अपनी मिसेस का इलाज कर रहे हैं. ही वांटेड कि उनकी मिसेस जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं, बट ही couldn't फिगर आउट द थॉट्स ऑफ हर. लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि उनकी मिसेस के दिमाग में क्या सोचें हैं, किस तरह उनकी सोचों तक उन्होंने रसाई हासिल करनी है. He treats her more like a young girl. He patronizes her, frequently refers to her with the tag of little, and asks if she cannot make any decision on her own. वो अपनी मिसेस को बिल्कुल बच्चों की तरह डील करते हैं. उन्हें लगता है कि उनकी मिसेस एक छोटी सी बच्ची हैं, और वो उनको अक्सर जो है उन्होंने टैग जो दिया हुआ है वो लिटिल गर्ल का दिया हुआ है, इसी तरह उन्हें बुलाते हैं. एंड ही इज़ सो श्योर दैट शी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन हर ओन बिकॉज शी इज़ नॉट हैविंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स. उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं. He used to dominate his missus in each and every aspect. Unlike his imaginative wife, John is extremely practical, preferring facts and figures to fancy. अपनी मिसेस के बिल्कुल ऑपोजिट उनका बिहेवियर है. उनकी मिसेस जो है वो ख्यालों की दुनिया में रहती हैं. शी इज़ एन इमेजिनेटिव लेडी. तो जबकि जॉन जो है वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, वो फैंसी वर्ड पे जो है वो फोकस नहीं करते और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं.
He seems to love his wife, but he doesn't understand the negative effect his treatment has on her. वो अपनी मिसेस से प्यार करते हैं एंड ही रियली वांटेड कि उनकी मिसेस जो है डिप्रेशन के फेस से बाहर आ जाए, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि द वे ही हैज़ बीन ट्रीटिंग हर वाइफ इज़ हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हिज वाइफ। उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि उनकी जो मिसेस हैं उनके ट्रीटमेंट का उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। द वे ही हैज़ आइसोलेटेड हिज मिसेस फ्रॉम द वर्ल्ड इज़ हैविंग क्वाइट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द narrator. John is so sure that he knows what's best for his wife that he disregards her own opinion of the matter, forcing her to hide her true feelings. जॉन को इतना यकीन है कि वो जो कुछ भी करते हैं अपनी मिसेस के लिए वो बेहतरीन होता है और उनसे ज़्यादा उनकी मिसेस के लिए कोई नहीं सोच सकता। तो इसलिए जो है वो अपनी मिसेस की फीलिंग्स की उनके ओपिनियंस की बिल्कुल जो है वो कदर नहीं करते। ही डिसरिगार्ड्स द ओपिनियन ऑफ हिज वाइफ बिकॉज ही डजंट थिंक दैट शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वीमेन एंड शी कैन टेक एनी डिसीजन on her own. Though John seems like the obvious villain of the story, yet the story doesn't allow us to see him as a wholly evil. John's method of treatment was wrong, but in all likelihood, he was trying to help his wife. हम देखते हैं कि जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें जॉन का करेक्टर बहुत नेगेटिव नज़र आता है, बट वी कुडेंट पोर्ट्रे हिम एज अ नेगेटिव करेक्टर एज अ विलन इन द स्टोरी। हम उन्हें विलन नहीं बना सकते स्टोरी में, क्योंकि जो तरीक़ाकार था उनका इलाज का वो गलत ज़रूर था, बट ही रियली लव्ड हिज वाइफ एंड ही वांटेड हिज वाइफ टू बी वेल soon, but the treatment the way of treatment was quite wrong, and he needs to change his way of treatment, but we couldn't say that he was a negative person or he doesn't love his wife. In fact, he loves his wife, but the way he was treating his wife was quite wrong. स्टोरी के माइनर करेक्टर्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। जेनी एंड मैरी बोथ आर स्टेइंग विद द कपल। दे यूज टू टेक केयर ऑफ द हाउस कोर्स एंड द बेबी। जेनी इज़ बेसिकली जॉन सिस्टर, जॉन की बहन है। शी एक्ट्स एज अ हाउस कीपर इन देयर समर होम एंड ऑल्सो सीम्स टू सर्व एज अ केयर टेकर टू द नरेटर. She is working as a housekeeper, plus she is taking great care of the narrator because narrator is suffering from severe depression and Jenny wants her to be well very soon. She is described as an enthusiastic in her duties. अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बहुत पुरजोश है, अपना काम बहुत टाइमली करती हैं। शी सीम्स टू स्टे वरिड फॉर द वेल बींग ऑफ हर सिस्टर इन लॉ। अपनी सिस्टर इन लॉ की सेहत के लिए बहुत परेशान है। नरेटर कॉल्स हर अ डियर गर्ल हु इज़ वेरी केयरफुल विद हर चार्ज। नरेटर उन्हें डियर गर्ल के नाम से स्टोरी में बुलाती हैं बिकॉज शी इज़ वेरी केयरफुल विद हर duties and responsibilities. However, narrator also says she must not let her find me writing, suggesting that Jenny is complicit with John in expressing the narrator's need for a creative outlet. लेकिन साथ साथ नरेटर को ये शिकवा भी है कि जेनी जो है अपने भाई जॉन की तरह उन्हें लिखने से मना करती हैं, and she doesn't allow her to write anything, so she is working in accordance with her brother to express the creativity of the narrator. येलो वॉलपेपर में हमें नरेटर, जॉन, जेनी और मैरी के अलावा एक और करेक्टर नज़र आता है। दैट इज़ एन इमेजिनरी करेक्टर एंड इज़ नॉट अ रियल करेक्टर एंड हैज़ बीन परसीव्ड बाय द नरेटर हरसेल्फ, एंड दैट करेक्टर इज़ ऑफ द विमेन इनसाइड द वॉलपेपर। हम देखते हैं कि नरेटर इवेंचुअली बिलीव्स कि शी सीज मैनी विमेन इन द येलो वॉलपेपर, बट स्टिल शी सेंटर्स ऑन वन। कि जो नरेटर है वो उसको येलो वॉलपेपर के पीछे काफ़ी ख़वातीन नज़र आती हैं पहले जो कैद में होती हैं और नरेटर उन्हें छुड़वाना चाहती है, लेकिन एट द एंड उसका फोकस सिर्फ एक खातून पे होता है और उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही औरत होती है जिसको वो कैद से येलो वॉलपेपर की बाहर लाना चाहती हैं। द वीमेन अपीयर्स ट्रैप्ड विद इन द बार्स लाइक पैटर्न ऑफ द वॉलपेपर and she shakes the patron as she tries to break out. And like the narrator, she has only the symbolic option of tending to the house, not of getting intellectual job in the outside world. यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि जो है नरेटर खुद जो है कन्फाइंड थे एक रूम में, तो उन्हें यही लगता है कि वॉलपेपर के पीछे एक औरत कैद है और वॉलपेपर की जो है उसके पैटर्न्स को वो जेल की सलाखों से यहाँ पे तशबीह देती हैं कि वो औरत ज़ोर ज़ोर से जेल की सलाखों को जो है हिला रही है, उन्हें तोड़ना चाहती है, एंड शी वांट्स टू कम आउट ऑफ द येलो वॉलपेपर। तो बेसिकली यहाँ पे जो है राइटर हैं, जो नरेटर हैं, वो अपनी ही जो है स्टेट को जो है एक्सप्रेस कर रही हैं कि शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड शी वांट्स टू गेट आउट ऑफ द रूम। तो उन्हें लगता है कि येलो वॉलपेपर के पीछे भी जो औरत कैद है वो बाहर आके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना चाहती है। शी वांट्स टू स्टे इन आउटसाइड वर्ल्ड एंड शी वांट्स टू गेट हर सेल्फ रिकग्नाइज्ड। जब हम येलो वॉलपेपर की स्टोरी के थीम पे नज़र डालते हैं तो वी यूज़ टू see many ideas behind the writing of the story of Yellow Wallpaper, like that of feminism, freedom in confinement, subordination of women in marriage, importance of self-expression,
Evils of resting cure. जैसे कि हम देखते हैं कि in the yellow wallpaper, Gilman uses the convention of the psychological horror tale to critique the position of women within the institutions of marriage, especially as practiced by the respectable classes of her time. हम देखते हैं कि उस ज़माने में जो रिस्पेक्टेबल क्लासेस थी, जैसे एक अपर मिडिल क्लास से जो है नरेटर बिलोंग करती हैं, तो ख़वातीन जो हैं शादी के बाद दे वर बाउंड टू ओबे देयर हस्बैंड्स व्हाट्स एवर देयर हस्बैंड्स हैव टू से, दे हैव टू रिस्पेक्ट द स्टेटमेंट्स ऑफ देयर हस्बैंड्स. बट ऑन द अपोजिट साइड हम देखते हैं कि हस्बैंड्स वोंट रिगार्ड द डिसीजंस और स्टेटमेंट्स ऑफ देयर वाइफ्स एंड दे वोंट गिव देम द इम्पॉर्टेंस. जैसा कि हम जॉन और नरेटर की रिलेशनशिप में देख लेते हैं कि जो हस्बैंड हैं वो अपनी मिसेस की स्टेटमेंट्स को बिल्कुल ऑन नहीं करते, उसके ओपिनियंस को डिसरिगार्ड करते हैं. And he used to treat his wife just like a little girl. So we can say that the time when the story was written, at that time in American society, women don't have a say for their rights, and they have to be bounded in their households course, and they have to obey their husbands after their marriage. हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन भी यहाँ पे फोकस किया गया है, बिकॉज द मेंटल कंस्ट्रेंट्स प्लेस्ड अपॉन द नरेटर वर इवन मोर सो दैन द फिजिकल वंस आर व्हाट अल्टीमेटली ड्राइव हर इनसेन. हम देखते हैं कि क्योंकि उसको बोलने की, अपने जज्बात का इजहार करने की आज़ादी नहीं थी, तो एट द एंड व्हाट हैपन्स टू हर दैट शी गॉट मैड, स्वेयरली मैड आई मस्ट से. और उसकी वजह यही थी कि वो अपनी सोचों को अपने अल्फाज का रूप नहीं दे सकती थी, एंड शी डोंट हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच विद हर. इसके अलावा हमें यहाँ पे ये भी नज़र आता है कि जो उस ज़माने में पोस्ट पार्टम डिप्रेशन की ख़वातीन थी, उनको जो इलाज करने का अमेरिका का डॉक्टर्स का जो तरीका इलाज था, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क. जिस तरह वो पेशेंट को डील करते थे पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के, दैट वे वाज टोटली absurd. द evils of the resting cure we have seen on the narrator that she has really gone mad, and because of the reason that she has been isolated and she was being confined in a room and she has to stay alone, she don't have to speak, she don't have to read or write anything. तो उसकी जो जहनी हालत थी बेहतर होने के बजाय बद से बदतर होती गई. तो यहाँ पे जो हमें थीम स्टोरी का नज़र आता है वो ये भी क्रिटिसाइज़ किया गया है उस ज़माने के डॉक्टर्स के वे ऑफ ट्रीटमेंट को, जो ख़वातीन को, डिप्रेशन की ख़वातीन को जिस तरह डील करते थे, कि दैट वाज टोटली रॉन्ग. जब हम किसी डिप्रेशन के पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं और उसको बोलने से मना कर देते हैं, तो उसकी जहनी हालत बेहतर होने के बजाय मज़ीद अबतर हो जाती है, एज़ वी हैव सीन इन द स्टोरी दैट द येलो वॉलपेपर की कॉन्टेक्स्ट पे एक नज़र डाल लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द येलो वॉलपेपर. Yellow wallpaper presents a fictional account of one woman's struggle against her own mind as well as her external circumstances. हम देखते हैं कि येलो वॉलपेपर जो है एक फिक्शनल अकाउंट है एक औरत के स्ट्रगल का अगेंस्ट हर ओन माइंड एज वेल एज हर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस. Its concerns are grounded in experiences that were a reality for women at that time. जेंडर रोल्स वर वेल डिफाइंड इन द 19th सेंचुरी सोसाइटी. 19वीं सदी में जो है मर्द ख़वातीन की जो है हदूद मुअय्यन थी. दे न्यू वेरी वेल कि उन्होंने अपने अपने दायरा कार में रहते हुए अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को खुश असलूबी से जो है सर अंजाम देना है. Men were expected to take care of the public aspects of life, making money, pursuing politics, and fighting in wars, etc. While women were expected to function in domestic life. उस ज़माने में विक्टोरियन एरा में अमेरिकन माशरा जो इतना आज़ाद नहीं था. They were not so free, and the women have to stay back at home. They were not allowed to go outside the houses. They don't have to go outside to participate in politics and other एक्टिविटीज़. मर्द जो है वो कमाने के लिए जाते थे, सियासत में हिस्सा लेते थे, जंगों में हिस्सा लेते थे, और ख़वातीन को जो है वो घर में रह के घरेलू काम अंजाम देने होते थे. दे हैव टू ओबे देयर हस्बैंड्स एंड देयर फादर्स, एंड दे हैव टू बी सबमिसिव टू देयर हस्बैंड एंड फादर्स. दे डोंट हैव टू गो आउटसाइड द हाउसेस. उस ज़माने का अमेरिकन माशरा जो है वो बहुत ज़्यादा हदूद व क़यूद की जद में था. दे वर नॉट सो फ्री, एंड राइट नाउ द अमेरिकन सोसाइटी हैज़ चेंज्ड अ लॉट. Yellow wallpaper, written by Charlotte Perkins Gilman, is a Gothic genre. Gilman's story, The Yellow Wallpaper, has been called Gothic because of its focus on madness and its horrifying conclusion. Some critics even chose to compare Gilman's story to the stories of Edgar Allan Poe. कुछ critics ने जो है compare किया है गिलमन की story Yellow Wallpaper को to the stories of Edgar Allan Poe because of its remarkable depiction of the deterioration of the human mind.
The Yellow Wallpaper by Charlotte is a popular literary piece for literary analysis, especially in women gender studies. It focuses on several inequalities in the relation between John and his wife. हम देखते हैं कि जो Yellow Wallpaper की story है, that was one of the most popular literary pieces in the American literature, but it also focuses on different inequalities between the relation of John and his wife. हमें जॉन और उसकी मिसेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इक्वल टर्म्स पे नज़र नहीं आता, मसावी हकूक़ हासिल नहीं है मिसेस को एज़ कम्पेयर टू हर हस्बैंड, और जो उसके हस्बैंड हैं वो डोमिनेट करते हैं अपनी मिसेस को हर चीज़ में, अपनी मिसेस के डिसीजंस को ओन नहीं करते, उसकी ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते, एंड ही यूज़ टू कॉल हिज वाइफ अ लिटिल गर्ल, और वो उसके डिसीजंस को डिसरिगार्ड करते हैं, उसकी सोचों को, उसके ख्यालात को सुनने का उनके पास टाइम नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल मैन। तो हम देखते हैं कि जॉन और उसकी जो मिसेस का रिलेशन है वो इक्वल बेसिस पे यहाँ पे हमें नज़र नहीं आता। दे बोथ आर नॉट वर्किंग ऑन द इक्वल टर्म्स। रिलेशनशिप में हमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स नज़र आते हैं। The story was first published in the year 1892 in an English magazine and is considered to be one of the most earliest and essential feminist literary pieces in America. 1892 में एक इंग्लिश मैगजीन में येलो वॉलपेपर की स्टोरी पब्लिश हुई थी, एंड इट हैज़ बीन considered as the most important and essential feminist literary work of the American society. The story illustrates the physical as well as the mental deterioration of women due in the 19th century because of the medically prescribed treatment of being allowed to do nothing. Basically जो स्टोरी है वो इलस्ट्रेट करती है कि उस ज़माने में जो ख़वातीन पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरती थी आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर बेबीज़, तो उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता था अमेरिकन सोसाइटी में डॉक्टर्स के एंड से, दैट वॉज नॉट द एक्यूरेट ट्रीटमेंट, और ख़वातीन को जो कन्फाइन कर दिया जाता था, दे वर बीइंग आइसोलेटेड एंड दे हैव टू स्टे बैक अवे फ्रॉम एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट दे यूज़ टू सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन, और डॉक्टर्स उन्हें रेस्ट प्रिस्क्राइब करते थे, और उन्हें कहा जाता था कि दे वर नॉट अलाउड टू टॉक, टू शेयर देयर आइडियाज़, टू राइट और रीड इवन, ताकि वो अपने ख्यालात को जो है वो अल्फाज का रूप ना दे सकें, किसी से बात ना कर सकें। दे हैव टू लिव एन इनएक्टिव लाइफ, उन्हें एक इनएक्टिव लाइफ जो है वो गुजारनी होती थी, और इस तरह जो है उनकी ज़हनी हालत बेहतर होने के बजाय मज़ीद अबतर हो जाती थी। क्योंकि हम देखते हैं कि आज के दौर में जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स उन्हें सजेस्ट करते हैं सख्ती से, उनकी फैमिलीज़ को भी रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट को अकेला ना बैठने दिया जाए, क्योंकि जब डिप्रेशन का पेशेंट तन्हाई में बैठता है तो ख्यालात जो उसके दिमाग में होते हैं वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, एंड ही और शी यूज़ टू गेट टूवर्ड्स द स्टेट ऑफ मैडनेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली जो स्टोरी का थीम है, जो उसकी स्टोरी का रीज़न है लिखने का राइटर के, वो ये बताना है कि अमेरिकन सोसाइटी में उस ज़माने में जो ख़वातीन पोस्टपार्टम डिप्रेशन की पेशेंट बन जाती थी, उनको ट्रीट करने का जो वे था, जो उनका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट था, that was absolutely absurd. That was not according to the disease. Gilman created a very effective fictional narrative based on her personal experience with depression, and this had a strong impact on other women. Gilman ने basically जो story write की थी ये अपने experience के बाद write की थी, क्योंकि Gilman जो हैं वो she herself was a patient of severe depression after the birth of her daughter, and when she went to the doctor of that American society, और उस ज़माने में जिस डॉक्टर के पास, जिस न्यूरोसर्जन के पास वो अपने ट्रीटमेंट के लिए गई, he was one of the most famous doctors of that time, और उन्होंने जो है उनकी डिज़ीज़ को बहुत सीरियस नहीं लिया, एंड ही जस्ट आस्क हर to stay back at home and to not to do any household chores. Even he asked her not to read, write or even talk, और उसने डॉक्टर्स ने उन्हें रिकमेंड किया कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी पेंसिल को, कलम कागज़ को हाथ नहीं लगाना, और आपने जस्ट रेस्ट करना है। तो दैट्स द रीज़न वाई गिलमन हैज़ रिटन दिस स्टोरी, बिकॉज शी वॉज लिटरली what we can say कि she was very much disheartened from the way of the treatment of that फेमस डॉक्टर, क्योंकि जो है डिप्रेशन के पेशेंट को इस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो बताना, उसको मज़ीद उसकी ज़हनी हालत को अबतर करना और उसको पागलपन की तरफ लेके जाना तो हो सकता है, लेकिन जो है रेस्ट करने से आई डोंट थिंक कि किसी भी पेशेंट को डिप्रेशन के हम ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो स्टोरी है उसके पीछे लिखने का मकसद गिलमन का यही था कि वो ख़वातीन को जो है उनकी तकलीफ़ों की तरफ, जो अमेरिकन सोसाइटी में एट दैट टाइम दे वर सफरिंग फ्रॉम, उनकी तरफ उनकी तवज्जो दिलाना चाहती थी, एंड द स्टोरी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द वेमेन ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी एट दैट टाइम. This story is critically acclaimed because it brings into focus the unequal relationships in the society. इस स्टोरी को जो है वो बहुत critically analyze भी किया गया,
इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुई, कमेंट्स हुए, क्योंकि इस स्टोरी ने जो है वो अमेरिकन सोसाइटी में जो उस वक्त सिनेरियो था अनइक्वल रिलेशनशिप्स का, कि ख़वातीन को जो है मसावी हकूक़ हासिल नहीं थे एंड द हस्बैंड्स हैव द सुप्रीमेसी ओवर द वेमेन, उसको जो है हाईलाइट किया था. द मेल जेंडर वॉज परसीव्ड to dominate the society, while female gender was not given the space to make their own decisions independently. This was seen in the instances when John belittles his wife's creative endeavors. John doesn't respect his wife and so he treats her like children by calling her a little girl. जैसा कि बार बार ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि उस ज़माने में अमेरिकन सोसाइटी में मेल जेंडर जो है डोमिनेट करती थी फीमेल जेंडर को, और फीमेल जेंडर जो है उसको स्पेस नहीं दी जाती थी कि वो खुद से अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली दे सकें. दे हैव टू ओबे द डिसीजंस ऑफ देयर हस्बैंड्स फॉर देयर बेटरमेंट. और उसमें जो है हम ये एग्जांपल भी देखते हैं कि जॉन स्टोरी में कॉन्सेक्टिवली अपनी मिसेस को लिटिल गर्ल बुला के कह के बुला रहे हैं, और ही इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग हिज वाइफ, और उसको बिल्कुल बच्चों की तरह डील कर रहे हैं, उसके ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते. हमें कहानी में बहुत जगह सीन्स में ये चीज़ नज़र भी आई है. The attitude of her husband made her dislike many things to her. The environment seems too isolated, making her unhappy. जो नरेटर के हस्बैंड का बिहेवियर स्टोरी में हम देखते हैं, राइटर के एंड से शो किया गया है, उसमें हम देखते हैं कि नरेटर जो है अपने हस्बैंड के एटीट्यूड की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ों से बददिल हो गई है, अपने एनवायरनमेंट से बददिल हो गई है, एंड शी इज़ नॉट हैप्पी विद द एनवायरनमेंट शी इज़ लिविंग इन. जिस एनवायरनमेंट में वो रह रही है वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, एंड शी वॉन्ट्स टू गेट अवे फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट. शी वॉन्ट्स टू get the freedom. The story portrays women in Western society as deprived of their rights. They were treated like objects. स्टोरी जो है अमेरिकन सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी के बताती है हमें कि उस ज़माने में ख़वातीन के साथ कैसा सलूक किया जाता था, स्पेशली इन द विक्टोरियन एरा, कि उनको उनके बुनियादी हकूक़ से जो है वो दूर रखा जाता था, उनको उनके बेसिक राइट्स भी नहीं दिए जाते थे, वो उनसे महरूम थी. दे डोंट हैव अ से इन देयर पॉलिटिकल अफेयर्स, दे डोंट हैव द राइट. The story of Yellow Wallpaper had enjoyed popularity mostly by women of American society. Because they feel that they deserved a better place in the society, they need space to exercise their creativity and productivity. Yellow Wallpaper की जो story है, it had gained too much popularity among the women of American society, and the story had a very great impact on the minds of the women of American society. They realized their importance and they decided that their opinions should be considered, their decisions should be respected, and they should have a say in all affairs. Women should have their decisions respected and no one should dismiss their ideas. Instead, ideas should be shared and debated regardless of the gender. Moreover, men should support women on equal basis rather than belittle them. They used to come to the conclusion कि their decisions should be regarded important, और उन्हें जो है अपनी मर्ज़ी से आज़ादी राय का इजहार करने की आज़ादी होनी चाहिए. they should have a freedom of speech, और उनके ओपिनियंस को, उनके आइडियाज़ को, उनके ख़यालात को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए. nobody should have the right to disregard their ideas or their opinions or their decisions. इस तरह जो है हम ये कह सकते हैं कि येलो वॉलपेपर की जो स्टोरी है, इसने एक रेवोल्यूशनरी किरदार अदा किया ख़वातीन के जहनों को खोलने में, उन्हें अपने बारे में आगाही देने के लिए कि जो है दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दे शुड बी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट बाय द मैन, एंड देयर शुड बी नो disturbance among the characters of women and men on the basis of gender. In the human story, the yellow wallpaper, John acts as a mirror through which women are viewed negatively in the society. A society in which women are not perceived to be full citizens. They were not supposed to be anywhere near the political arena or in the public eye. हम देखते हैं कि अमेरिकन सोसाइटी में जिस वक्त ये स्टोरी लिखी गई, स्पेशली इन द विक्टोरियन एरा, ख़वातीन को पॉलिटिक्स में आने की इजाज़त नहीं थी. They were not allowed to leave their houses or to do something outside the houses. Men have to do each and everything outside the house, and the women have to be in the houses and they have to manage their household chores. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि येलो वॉलपेपर ने हमें जॉन का करेक्टर दिखाया गया है कि ही वॉज अ नेगेटिव मैन बिकॉज ही यूज टू डोमिनेट हिज वाइफ, और वो अपनी मिसेस के डिसीजंस को जो है वो डिसरिगार्ड करता था, उसको बच्चों की तरह डील करता था. तो दैट वाज नॉट द राइट वे. और इसी तरह मेजॉरिटी जो सिनेरियो हम देखते हैं अमेरिकन सोसाइटी का उस वक्त का, वो सारे फैमिलीज़ में यही था कि जो है मैन यूज टू डोमिनेट द women in their houses and the women were not allowed to do the outside work.
तो हम देखते हैं कि स्टोरी में जो है जॉन का करेक्टर हमें थोड़ा सा नेगेटिव पोर्ट्रेट करता हुआ नज़र आता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जॉन वॉज नॉट अ गुड मैन। ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज वाइफ। वो चाहता था कि उसकी मिसेस ठीक हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह की सोसाइटी में वो मूव कर रहा था तो उसका बिहेवियर अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही था। तो द मेजर थिंग इज़ अबाउट द येलो वॉलपेपर इज़ कि हमें सोसाइटी का बिहेवियर जो है नज़र आता है कि राइटर जो है वो चेंज करवाना चाहती थी टूवर्ड्स द विमेन जेंडर। The View has led American women to fight for their rights by creating women movements to fight for their place in the society। और इसी वजह से जो है जब ये स्टोरी पब्लिश हो गई तो उसके बाद जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो लॉन्च हुई अमेरिका में, एंड दे वर्क एंड दे फाइटेड फॉर द राइट्स ऑफ द वीमेन, इक्वल राइट्स ऑफ द वीमेन। और अब हम देखते हैं कि अमेरिकन माशरा जो है उसमें औरत को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जो है वो किरदार दे दिया गया है। द वीमेन आर वर्किंग ओवर देयर इंडिपेंडेंटली, दे आर नॉट बाउंड इन द हाउसेज एज दे वर इन द विक्टोरियन एरा। As we have seen that the narrator has been suffering from postpartum depression, and the treatment of the doctor has suggested her to take complete rest, and that was not the accurate way of treatment. Postpartum depression, now considered as a fairly common form of depression among new mothers, was unlabeled as a valid medical concern and misunderstood at that time, Gilman wrote in Yellow Wallpaper। हम देखते हैं कि postpartum depression उस वक्त के ज़माने में जब अमेरिका में ख़वातीन को होता था तो it was misunderstood और उसका कोई सही नोटिस नहीं लिया जाता था, and it hasn't been given a valid medical concern। Depression, mood swings, crying, loss of appetite, tiredness and fatigue, anxiety, failure to bond with child are all symptoms of this physical and emotional condition। Postpartum depression के जो symptoms हैं वो include हैं, depression हो जाता है पेशेंट को, mood swings होते हैं, आपका behavior abruptly change हो जाता है, crying, रोने को दिल चाहता है, भूख नहीं लगती, tiredness होती है, थकावट फील होती है, डिप्रेशन होता है। और आप इवन ये कि इसके सिम्टम्स इतने सवेयर होते हैं कि यू आर अनएबल टू क्रिएट अ बॉन्ड विद योर चाइल्ड, क्योंकि आप फिज़िकली और इमोशनली जो हैं वो बिल्कुल ड्रेन हो चुके होते हैं इस डिप्रेशन के फेज़ में। टुडे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब साइकोथेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट्स, एक्सरसाइज टू ट्रीट द कंडीशन, एंड दे रिकमेंड अवॉइडिंग आइसोलेशन विच कैन वर्सन सिम्टम्स। हम देखते हैं कि आज के दौर में डॉक्टर्स जो हैं वो डिप्रेशन के पेशेंट्स को या पोस्टमार्टम डिप्रेशन के पेशेंट्स को डिफरेंट जो हैं वो स्ट्रेटजीज़ के थ्रू डील करते हैं। दे यूज़ टू सजेस्ट दैम साइकोथेरेपीज़, एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, एक्सरसाइज ऑफ़र करते हैं ताकि उनकी जो कंडीशन है वो बेहतर हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डॉक्टर्स जो है वो डिप्रेशन के पेशेंट्स को आइसोलेशन में जाने से सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि जब डिप्रेशन का पेशेंट आइसोलेशन में जाता है तो जो ख़यालात उसके जहन में होते हैं वो बार बार अकेले बैठ के उन्हीं को सोचता है और वो मज़ीद उसकी हालत बद से बदतर होती है। जबकि हम देखते हैं कि अमेरिकन सोसाइटी में डिप्रेशन के पेशेंट्स को आइसोलेट कर दिया जाता था, एक कमरे में कन्फाइन कर दिया जाता था, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट जो है वो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होने के बजाय नेगेटिव इफ़ेक्ट होता था और डिप्रेशन के पेशेंट्स की कंडीशन बद से बदतर हो जाती थी। In Holman's time, however, women who had a nervous condition after baby birth were often put on the rest cure regime promoted by Dr. Silas Weir Michael. The rest cure included rest, isolation, and a diet high in milk and meat. It also included an avoidance of using the brain for even small pursuits such as writing, reading, talking, and swing. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अमेरिकन सोसाइटी में जो ये ट्रीटमेंट था डिप्रेशन के पेशेंट्स का वो यही था कि इफ़ समबडी इज़ सफरिंग फ्रॉम पोस्टमार्टम डिप्रेशन तो उसको बेस्ट क्योर यही बताया जाता था कि शी हैज़ टू टेक rest, and she has to stay in isolation, and she has to take a diet that is high in milk and meat, and she has to avoid using brain for even small pursuits। छोटे छोटे कामों के लिए भी दिमाग इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। उन्हें रीडिंग, राइटिंग, टॉकिंग और सोइंग से मना किया जाता था, इवन ये कि बोलने से भी मना किया जाता था। येलो वॉलपेपर की स्टोरी पब्लिश होने के बाद एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया अमेरिकन सोसाइटी में, और women had a strong impact of the story, and they decided to raise voice for their rights in the American society। They decided to quit the idea of the true women that was of Victorian era। और वो आइडियल क्या था ट्रू women का कि the women have to stay back at their homes, they have to perform the domestic chores, and they were not having the right to
go outside the houses. They were not allowed to vote. उन्हें वोट कास्ट करने की परमिशन नहीं थी. जो आइडियल women थी विक्टोरियन एरा की, they don't have the right to inherit the property. वो प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती थी. इस आइडिया को पुश बैक दिया जो है विक्टोरियन एरा के एंड में जो ख़वातीन थी फेमिनिस्ट मूवमेंट की फेवर में. They have given a pushback to the ideal of the true women and brought the new concept and updated concept of a women that was in the late 19th century. These early feminists realized a woman who was independent on equal terms with men and educated. ये जो feminist movements launch हुई थी, उन्होंने एक ऐसी औरत का तस्वुर पेश किया जो आमाशी तौर पे आज़ाद थी, इंडिपेंडेंट थी, अपनी राय का इजहार कर सकती थी. शी हैज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड शी वॉज इक्वल इन ऑल टर्म्स विद मैन. मर्दों की शाना बशाना हर लिहाज से काम करने के लिए तैयार थी. एंड शी वॉज हाईली एजुकेटेड. दे फाउट फॉर वीमेंस राइट्स, ऑफन अवॉइडेड द रिस्ट्रिक्शंस विच वर देयर फॉर वीमेन. ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो है वो लड़ाई झगड़े किए, ख़वातीन को उनके हकूक़ दिलवाए. इन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के बाद जो फेमिनिज़म की हामी ख़वातीन थी उन्होंने, मर्दों ने भी उनको फेवर किया बहुत से. और जो है जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जिन पाबंदियों में ख़वातीन कैद थी, उन पाबंदियों से उनको अमेरिकन सोसाइटी में छुटकारा दिलवाया गया और अमेरिकन सोसाइटी में ख़वातीन को इक्वल स्टेटस दिलवाया गया. Support for the new women was not divided by gender. Some women vehemently opposed this new women and some men approved of the independence of their women. इसमें जो सबसे important point हम देखते हैं कि जब ये new women का concept raise हुआ अमेरिका में, तो it was not divided on gender basis. यानी it was not like that कि ख़वातीन जो हैं वो इस जो है आइडिया को उन्होंने फेवर किया और मर्दों ने इसके अगेंस्ट काम किया. बल्कि ऐसा हुआ कि कुछ ख़वातीन जो पुराने ज़माने की थी, विक्टोरियन एरा की थी, उन्होंने इस आइडिया को सख्ती से अपोज किया और घरेलू जो एनवायरनमेंट था उसको ख़वातीन के लिए बेस्ट करार दिया. जबकि कुछ मर्दों ने जो है वो ख़वातीन की आज़ादी को फेवर किया एंड दे अपोज द आइडिया, दे फेवर्ड द आइडिया ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द women, while some women oppose the idea of the independence of the women. So we can clearly say that this idea was not divided by gender in the American society. The yellow wallpaper explores the various attitudes of both sexes prevalent during the time of this important transition in the feminist movement. अगर हम नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से येलो वॉलपेपर को क्रिटिकली देखें तो वी यूज टू गेट टू नो दैट येलो वॉलपेपर पैटर्न सिम्बलाइजेज द कन्फाइनमेंट ऑफ द नरेटर. कि येलो वॉलपेपर पे जो पैटर्न्स हैं वो सिम्बलाइज करते हैं नरेटर की कन्फाइनमेंट को, दैट शी हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड इन द room. It traps her thoughts as she is increasingly fascinated by its paths and follows them with her eyes at the expense of doing anything else. हम देखते हैं कि जो येलो वॉलपेपर के पैटर्न्स हैं उन्होंने उसके खातून के नरेटर के ख्यालात को जो है जकड़ा हुआ है. एंड शी इज़ इंक्रीजिंगली फैसिनेटेड बाय द पाथ्स एंड फॉलोज देम विद हर आइज एट द एक्सपेंस ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स. वो सारा दिन कुछ नहीं करती, सिर्फ येलो वॉलपेपर के पैटर्न्स को जो है वो देखती रहती है. After few weeks, she believes that the wallpaper patterns include bars that have trapped the women inside. This woman shakes the bars trying to get it out. कुछ हफ्ते गुजारने के बाद नरेटर को ये यकीन हो जाता है कि जो येलो वॉलपेपर के पैटर्न्स हैं दे आर जस्ट लाइक बार्स. उसमें जो है वो सलाखें हैं और एक खातून जो है येलो वॉलपेपर के पीछे सलाखों में कैद है. एंड शी इज़ शेकिंग द बार्स सो दैट शी कैन गेट आउट ऑफ द येलो वॉलपेपर. उसका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस बारे में कि येलो वॉलपेपर के पीछे एक औरत कैद है. At the end of the story, the narrator tears the paper from the wall trying to free the women. स्टोरी के एंड पे हम देखते हैं कि नरेटर जो है वो मैडनेस की हालत में जो है वो येलो वॉलपेपर को दीवार से जो है वो फाड़ देती है और उसको जो है अलग अलग करके उसके हिस्से अलग अलग कर देती है, बिकॉज शी इज़ ट्राइंग टू फ्री द वीमेन इनसाइड द येलो वॉलपेपर. उसकी जो इल्यूजन्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अबाउट द येलो वॉलपेपर एंड इट्स पैटर्न्स. The action of tearing down the symbol of confinement represents the narrator's own desire to be free. हम देखते हैं कि येलो वॉलपेपर को जब वो फाड़ती है सिर्फ इसलिए कि वो उसके पीछे छुपी औरत को जो आज़ादी दिलवा सके, तो बेसिकली जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं नरेटर की अपनी ख्वाहिश को कि वो आज़ाद होना चाहती है, वो कमरे से बाहर जाना चाहती है. शी वॉन्ट्स टू हैव breath in the fresh air. The yellow wallpaper also symbolizes contemporary xenophobia. Contemporary xenophobia को भी yellow wallpaper इस स्टोरी में रिप्रेजेंट करता है. In this way, the wallpaper evokes a powerful combination of debilitating cultural anxieties. Cultural anxieties हमें नज़र आती हैं कि सोसाइटीज़ जो हैं डिफरेंट उनमें किस तरह के बिहेवियर्स होते हैं, किस तरह ख़वातीन के साथ बिहेव किया जाता था उस ज़माने में अमेरिकन सोसाइटी में, हाउ दे वर कन्फाइंड इन द रूम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ depression. If we use to analyze the character of the narrator,
तो we used to get to know that the narrator's declining mental condition has both external and internal origins. हम देखते हैं कि जो नरेटर की जहनी हालत अबतरी की तरफ जा रही है उसके both external और internal origins हैं, दोनों वजूहात हैं, बैरूनी और अंदरूनी. शी इज़ क्लियरली सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. हमें नज़र आता है कि वो डिप्रेशन से, बल्कि स्वेयर डिप्रेशन कहना चाहिए, स्वेयर डिप्रेशन से गुजर रही है आफ्टर द बर्थ ऑफ हर बेबी. येट द आइडलनेस एंड आइसोलेशन दैट इज़ सपोज टू क्योर हर ऑफ दिस कंडीशन ओनली वर्सन्स इट. हर मैडनेस ऑल्सो हैज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इफेक्ट्स. हम देखते हैं कि उसको जो रेस्ट क्योर बताया गया है, कि उसकी ट्रीटमेंट जो बताया गया डिप्रेशन का, कि उसको आइसोलेट कर दिया गया और उसको किसी भी काम के करने से मना कर दिया गया, उसको अकेला कर दिया गया, इस चीज़ का जो है उसके ऊपर मज़ीद बुरा असर हो रहा है और उसकी सेहत जो उसकी जिस्मानी दिमागी सेहत है वो मज़ीद अबतरी की तरफ जा रही है, वो पागलपन की तरफ जा रही है. हर माइंड रिवील्ड इन द वर्ड्स ऑफ हर जर्नल बिकम्स मोर एंड मोर caught up in the thoughts of the yellow wallpaper and its patterns, in hallucinations and in her increasingly paranoid about the other people in the house. हम देखते हैं कि उसका जो येलो वॉलपेपर के बारे में जर्नल था उसमें हमें पता चलता है कि उसकी सारी तवज्जो का मरकज़ वॉलपेपर बन गया था, क्योंकि शी हैज़ नो अदर एक्टिविटी टू डू. She was not allowed to use paper or pen, though she was all the time busy in observing the patterns of the yellow wallpaper, and she used to get accustomed to madness. Physically, she is increasingly tired, emotionally unstable, sleeping most of the days away and crying whenever she tries to discuss her situation with her husband John. हम देखते हैं कि फिज़िकली वो दिन ब दिन जो है जिस्मानी तौर पे थकावट का शिकार होती जा रही थी और इमोशनली वो अनस्टेबल थी, उसको अपने जज्बात पे काबू नहीं था, वो असाबी तनाव का शिकार थी और वो मेजॉरिटी टाइमिंग्स में या तो सोती रहती थी या येलो वॉलपेपर को देखती रहती थी. और जब भी वो अपने हस्बैंड से अपनी सिचुएशन डिस्कस करना चाहती थी तो वो रोने लग जाती थी, बिकॉज शी वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस हर थाट्स विद हर हस्बैंड. इन द एंड she succumbs in both body and mind to the madness, creeping along the wall in the room without taking notice of her surroundings. और एंड में हम देखते हैं कहानी के इख्तिताम पे कि वो जहनी तौर पे बिल्कुल पागल हो चुकी थी और वो जो है वो अपने कमरे में दीवार के साथ साथ रेंग रही थी, अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स का कोई भी नोटिस लिए बगैर. तो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम स्वेयर मेंटल इलनेस. शी हैज़ बिकम द विक्टिम ऑफ स्वेयर मेंटल इलनेस बिकॉज द मेथड ऑफ हर ट्रीटमेंट वॉज नॉट एक्यूरेट. At the time Yellow Wallpaper story was written, women of the narrator's class were expected to stay in the house, perform the functions of the gracious and generous hostess while serving the guests, and submit to the husband's authority. जब येलो वॉलपेपर की स्टोरी लिखी गई तो नरेटर की क्लास की जो ख़वातीन थी, दे हैव टू स्टे बैक एट देयर होम्स, दे कुडंट गो आउटसाइड द हाउसेस, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी का यही कल्चर था उस वक्त कि वीमेन हैव टू स्टे बैक एट देयर होम्स. उन्हें अपने घर में रह के घरेलू अमूर सर अंजाम देने होते थे. दे हैव टू कुक फूड फॉर द गेस्ट एंड फॉर द पीपल लिविंग इन द हाउस. घर में आने वाले मेहमानों के लिए खाना तैयार करना होता था और घर में रहने वाले लोगों का ख्याल रखना होता था. एंड दे हैव टू सबमिट टू देयर हस्बैंड्स अथॉरिटी, अपने हस्बैंड्स का फर्माबरदार रहना होता था. व्हाट्स एवर देयर हस्बैंड्स यूज टू से, दे हैव टू लिसन टू देम एंड टू ओबे देम. As a woman, the narrator lacks liberty, agency in her own life, and meaningful work. She must stay in the home, and most decisions are made for her, not by her. Instead, John decides everything. हम ये देखते हैं कि नरेटर जो हैं वो आज़ादी चाहती थी. शी वांट्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच. वो चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी बामकसद तरीके से कोई अच्छा काम करके गुजारें, बट शी डोंट हैव द लिबर्टी टू डू सो बिकॉज ऑफ द कल्चर ऑफ द सोसाइटी इन विच दे वर लिविंग. और उनके जो हस्बैंड्स थे वो मेजॉरिटी डिसीजंस उनकी ज़िंदगी के बारे में ख़ुद लेते थे. शी डोंट हैव द राइट टू से एनीथिंग अबाउट हर लाइफ, और वो अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर सकती थी. हर डिसीजन के लिए, हर फैसले के लिए वो अपने हस्बैंड की जो है वो पाबंद थी. उनके हस्बैंड ही उनके लिए हर किस्म का डिसीजन लेते थे. जॉन डिसाइड्स टू रेंट द हाउस एंड डिसाइड्स दैट शी शुड रेस्ट. हम देखते हैं कि जॉन ने डिसाइड किया कि जब बेटी की पैदाइश के बाद शी वॉज सफरिंग फ्रॉम पोस्टमार्टम डिप्रेशन, कि दे शुड रेंट देयर हाउस एंड दे शुड गो फॉर द कंट्री साइड प्लेस टू लिव इन. तो वहाँ पे भी जो है नरेटर की मर्ज़ी से कुछ नहीं हुआ. सब डिसीजन जॉन ने अपनी मर्ज़ी से लिए. एंड ही डिसाइडेड कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन का जो इलाज है वो रेस्ट है, सो द मिसेस शुड टेक रेस्ट. दैट्स व्हाई दे वेंट टू द कंट्री साइड रूम. यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली नज़र आता है कि किसी भी मामले में जॉन जो है अपनी मिसेस की राय का, ओपिनियन का जो है वो रिगार्ड नहीं करते थे, रिस्पेक्ट नहीं देते थे. हर जगह अपनी पाबंदी या अपनी मर्ज़ी से लगाते थे और हर डिसीजन अपने ओन पे लेते थे, बिकॉज दैट वॉज बेसिकली द कल्चर ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी, दैट मैन वॉज डोमिनेंट एंड वीमेन हैव टू लिव अंडर देयर सुप्रीमेसी.
Even the role of homemaker and mother are taken over by other women. Mary takes on the role of mother, taking care of the baby. Jenny does the other domestic tasks in the house, including taking care of the narrator. जैसे कि हम देखते हैं कि narrator was suffering from postpartum depression, तो उनके हस्बैंड क्योंकि उनके फिजिशियन भी थे, ही हिमसेल्फ वॉज अ डॉक्टर, तो उन्होंने उन्हें रेस्ट प्रिस्क्राइब किया और इवन ये कि उन्हें घर के काम काज करने से भी मना कर दिया। वो अपनी बेटी की भी केयर खुद नहीं कर सकती थी। देयर वॉज अ नैनी हुज नेम वॉज मैरी हु यूज टू टेक केयर ऑफ द बेबी, और जॉन की सिस्टर जेनी जो हैं वो बाकी घरेलू अमूर को सर अंजाम देती थी, सारे हाउस होल्ड कोर्स को वो मैनेज करती थी। एंड नरेटर जस्ट हैव टू स्टे बैक इन द रूम, शी वॉज कन्फाइंड इन द रूम एंड शी जस्ट हैव टू टेक रेस्ट। तो अकेले रह रह के, इनएक्टिव लाइफ गुजार के, आइडलनेस की लाइफ गुजार के, शी वॉज गेटिंग accustomed टू loneliness at that time and she got mad at the end of the story. Treated like a child who must be cared for, the narrator has nothing but idleness in life. जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनके हस्बैंड उन्हें बिल्कुल एक बच्चे की तरह डील करते थे, जिसका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ख्याल रखा जाता था, और शी वॉज नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग। तो उनकी ज़िंदगी जो है काहली की सुस्ती की तरफ जा रही थी, इनएक्टिव लाइफ शी वॉज हैविंग। The writer was of the strong opinion that women need meaningful work suited to their natural abilities and inclination which might not be maternal or domestic. The narrator's mental decline demonstrates what can happen when women lack suitable work or freedom in their own decisions. हम ये देखते हैं कि जो राइटर है स्टोरी की, वो यहाँ पे बेसिकली इस स्टोरी को लिखने का मकसद ये बयान करती हैं कि ख़वातीन को जो है अपना ओपिनियन देने का हक़ होना चाहिए, और वो अपनी ज़िंदगी बामकसद तरीके से कोई अच्छे काम करके जो उनकी नेचुरल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हों अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ रखती हैं। दे शुड नॉट बी मैटरनल और डोमेस्टिक, उन्हें सिर्फ जो है वो घरेलू अमूर के लिए या बच्चों की परवरिश के लिए बाउंड ना किया जाए। दे शुड हैव द फ्रीडम टू गो आउटसाइड एंड डू द वर्क्स अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल एबिलिटीज़। तो दैट वाज बेसिकली द थीम ऑफ द स्टोरी कि द नरेटर वाज सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और उसकी वजह ये थी कि शी वाज बाउंड टू ओबे हर हस्बैंड्स डिसीजंस। वो खुद कुछ नहीं करना चाहती थी, खुद कुछ नहीं कर सकती थी इनफैक्ट टाइमर्स से, और वो अपने पोटेंशियल्स को यूटिलाइज़ करना चाहती थी, बट अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी एट दैट टाइम शी वॉज अनएबल टू यूज़ हर पोटेंशियल्स, एंड दैट्स वाई she got to become a patient of severe depression and madness. Well students, as you all know that we are over with the short summary, character discussion and critical analysis of the story. So now at the end I'm giving you few questions to solve. Question number 1 is, what are some themes of the yellow wallpaper? Write about any two in detail कि येलो वॉलपेपर के मेजर थीम्स कौन कौन से थे, उसमें से 2 मेजर थीम्स के बारे में यू हैव टू राइट। Whatsoever you feel are the major themes of the yellow paper, you just have to write in your own words. Second question is, what does the yellow wallpaper symbolize? Yellow wallpaper story में किस चीज़ को symbolize करता है? Just keep one thing in your mind कि whatsoever you are going to write, you should be very clear about your writing and you have to write each and everything on your own. You don't have to copy from internet or you don't have to get notes from each other. Just write whatsoever you have learned. Well students, and just to check your understanding of the topic, I have given few short questions which you have to answer. So just recall your memories and start answering the questions. Question number 1 is, what kind of house they are in. Next is, what is happening to couple's own house and when they were away. What is the name of the nanny? What is the major similarity between the narrator's room and wallpaper's pattern? What was caught in the wallpaper's pattern? Who was working as the housekeeper? These are few short questions, और obviously अगर आप लोगों ने स्टोरी ध्यान से सुनी है, you have gone through the lecture in detail, तो आप लोगों को within a minute इन सारे questions के answers आ जाएंगे. These are short questions. One line answer is quite enough. Thank you.